Hey guys, we just finished a new episode with Pooja. This is actually the most fun that I've had on this podcast so far. She's very philosophical, talks a bunch about just her journey writing the UPSC and working at corporates and now working at startups. I think you'll enjoy it. So I went there. I cried like anything first day. I mean मुंबई का लोकल स्टेशन मैं लाइफ में इतनी भीड़ नहीं देखी थी और आई वाज लाइक लोग कहाँ जा रहे हैं किस बात की जल्दी है लोगों को You can only pick two out of these three. Which ones would you pick? ग्रेट मैनेजर एंड ग्रेट स्टार्टअप Really? Give us one line on why. काम सीख लो पैसे तो मिल जाएंगे That's like as diverse as we've gotten anybody on this podcast. All right. I've got a new guest in a new episode at Switch. That's exciting. What's up, Nandan? What's happening? I'm excited to get into another episode and hear about one more inspiring, exciting story. Yeah. And Pooja is a lot going for her. Yeah. And I don't know if you can see it in the frame, but she's also a biker. But I thought maybe we'll come back to that info much later. Thank you so much for having me here. I'm really excited to talk to you guys. Yeah, no, we're super excited. Pooja, will you give us, of course, Nandan and I know, but I think folks watching and listening don't know about the pretty crazy journey that you've had. You've done a bunch of different things in the last few years. Yeah. Take us from undergrad, what you studied, what you did after that. Tell us everything. So after like 12th, it's like आई गेस हमारा टाइम जो था उस वो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि इंटरनेट एंड एवरीथिंग विल बी देयर तो फ्रेंड्स के बड़े दीदी भैया जो कर रहे हैं फॉलो कर लेते हैं उसको देन आई गॉट टू नो अबाउट जियोलॉजी सो आई वाज लाइक कि जियोलॉजी पढ़नी है और पूरे इंडिया में ही सागर एक ऐसी जगह थी जहाँ का फील्ड जियोलॉजी काफ़ी फेमस था तो आई वाज लाइक कि एमपी में ही है तो चले जाते हैं फिर आई वेंट देयर आई स्टडीड लाइक 3 years जियोलॉजी सब कुछ सेट था कि देन एमटेक करके जियोलॉजिस्ट बनना है सो थर्ड ईयर आते आते आई जस्ट फेल्ट कि वो सब हो जाएगा पहले पैसे कमाते हैं लाइक आई सेड कि वो होता है आपके पास ज़्यादा सोर्सेस नहीं होते देन आई जस्ट थॉट कि ओके आई शुड स्टार्ट विथ सिविल सर्विसेज आई वेंट टू इंदौर आई स्टडी देयर लाइक फॉर 3 years एमपीपीएससी की प्रिपरेशन की एंड देन Were you based in MP itself? Yeah. In your home? या सो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन 3 years उसके बाद आई स्टार्टेड लाइकिंग एवरीथिंग हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड देन दिस फिलोसफी ऑल्सो आई गॉट टू नो सो आई वॉज लाइक गेटिंग टू डीप फॉर दिस फिलोसफी स्टडी सो आई वॉज लाइक कि इससे पहले लाइक मेरे दिमाग में ये थॉट है कि आप फिलोसफी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर पीएचडी कर लेंगे समथिंग लाइक दैट नहीं जो पहले सोचा था इंडिपेंडेंट लेट्स गो फॉर इट then I got to know about ICICI. I applied for it. I got the part, like interview and everything was really nice. Then I got it like in Mumbai, Andheri. So I went there. I cried like anything first day. I mean मुंबई का लोकल स्टेशन मैं लाइफ में इतनी भीड़ नहीं देखी थी और आई वाज लाइक लोग कहाँ जा रहे हैं किस बात की जल्दी है लोगों को और लाइक घर पे कॉल में बोला कि सब सेट है मुंबई इज़ काफ़ी कूल और क्या कहोगे आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हो तो यू कांट से एनीथिंग कि नहीं ऐसा है वैसा है एंड देन मुंबई में आई स्टार्टेड पर वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार पढ़ने में जितना मज़ा नहीं आता था उतना ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है देन इट वॉज लाइक अ डिफरेंट जर्नी आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल it was like a branch role so branch mein you have to work you have to serve customers and everything I did everything over there different type के customers से मिलना उनकी journey सुनना and then I got to know कि I'm people's person I really enjoy talking to people and everything and then they used to talk to me like anything कि पूजा तुम कहाँ थी we wanted to share this like senior citizen 70-80 year old people are coming and talking to me sharing कि यार मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ तुम गई हो वहाँ पर मैं तुम्हें फ़ोटो भेजूँगा और समथिंग लाइक दैट कभी मिठाई के डब्बे लेके आ जाते थे कभी कहीं घूमने गए तो वहाँ से शॉल लेकर आ गए कि अरे मुझे याद आया कि तुम्हारे लिए शॉल तुम आई वाज लाइक कि
ये सब बहुत I used to love it, like working with You people and built this everything. sort of in-person relationship. with Yeah. So I never thought कि मैं काम कर रही हूँ, अपने आप काम हो जाता था. It was just like कि I'm going, meeting and talking to people, everything. And then कुछ corporates के साथ भी काम किया, like IIFL and everything. So it was like really exciting journey. After 2 years, somehow it changed because I met few people who used to work in a startup. तब उन्होंने स्टार्टअप कल्चर के बारे में बताया. आई वॉज सो शॉक्ड कि अच्छा आइडिया पे भी लोग पैसे देते हैं. ओके, सिर्फ आपको पैसे देते हैं डुबाने के लिए. आई वॉज लिटरली शॉक्ड अबाउट इट. सो आई स्टार्टेड डिगिंग डीप कि क्या होता है स्टार्टअप एंड ऑल. तो माई फ्रेंड्स, आई हैव सीन देम टॉकिंग टू वीसीज एंड एवरीथिंग कि वीसीज के साथ इंटरव्यू हो रहा है, हाउ दे यूज टू सेल अ स्टोरी एंड एवरीथिंग. वहीं से मैंने सीखा कि ओके लोग खुद को सेल कैसे करते हैं. तो वहाँ से So that was the skill that you were interested in, like Yeah. developing. हाँ, so I started like working in this direction कि क्या चीज़ें होती है, what is startup and how the idea thing works. Then मैंने apply करना शुरू किया कि okay, the culture part was really exciting कि जब मुझे पता चला कि okay, startup is something जहाँ पे लोग प्रमोशन का वेट नहीं करते हैं. 3 साल काम करने के बाद प्रमोशन होगा, तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था. मुझे पता कि यार मैं तो रोज काम कर सकती हूँ ऐसे. तो मुझे जब पता चला कि आप बस काम करते जाओ, देन यू विल अर्न दैट एवरीथिंग, लाइक ग्रोथ एंड एवरीथिंग. सो आई वाज सो हंग्री फॉर इट एंड देन आई डिसाइडेड कि ओके आई एम गोना जॉइन अ स्टार्टअप. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड देन 3 dots हैपन. सो वो होता है ना कि आपकी हर जर्नी में जो फर्स्ट होता है दैट इज ऑलवेज स्पेशल. बिकॉज कॉर्पोरेट से जब आप स्टार्टअप में आ रहे होते हो, आपको नहीं होती है चीज़ें पता. बिल्कुल. But these guys were really amazing. They trusted me. And then उनके साथ I worked like 11 months. तो उस 11 months में I would say कि काफ़ी ट्रांजेक्शनिंग लोड था. मतलब यूजर्स के साथ काम किया. तो 3 dots के बारे में थोड़ा बता देती हूँ. 3 dots is like they are building a social investing platform where people can learn where to invest, how to invest and when to invest. तो it's like a demand and supply. हमने देखा ये मार्केट में पैसे तो है बट कहाँ डालना नहीं पता होता. तो वो प्लेटफॉर्म इस तरीके से बनाया गया कि जैसे यू हैव सीन बहुत सारे एक्सपर्ट्स स्टॉक मार्केट के, दे रन देयर कम्युनिटी टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम. सो वी स्टार्टेड टॉकिंग टू दीज पीपल, लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट रियली वर्किंग फॉर देम. एंड देन वी वर लाइक कि हम आपकी कम्युनिटी बनाते हैं, वी विल हेल्प यू मेक इट रियली ग्रो. और हुआ ये, मतलब उसके बाद देयर वर पीपल जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसे भी कमाए, प्लस कुछ लोगों को एक्सक्लूसिविटी पता चली कि यार हम तो मजे में कर रहे थे अब तक, बट लोगों के साथ काम करके जैसे आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते ना, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस क्या होता है कि आप लोगों को पैसे कमाने में हेल्प कर रहे हो. तो इट रियली वर्कड. लोगों के साथ ये काम किया और दैट वाज रियली अमेजिंग वर्किंग इन 3 dots. एंड then I left 3 dots after 11 months. Then I joined Habitat. Habitat was building so many things. It was really nice working there. And then I currently am working in Rigi as a partnership manager there. Wow, that's some journey, because that has something fairly academic, which is geology, and then it has, I think, UPSC, which is like public service, and then it has a pretty hardcore corporate private banking company, which is ICICI, and then it's now got a bunch of like early stage startups. That's like as diverse as we've gotten anybody on this podcast. Because at some point you said, I had to prepare to get into a startup from your ICICI bank days. What is that preparation? And if you could break it down, actually, that'd be helpful. ये जितना स्ट्रेंज है ना उतना एक्साइटिंग भी है कि सो आई वॉज इन मुंबई. आई मेट अ फ्रेंड. सो ही वॉज अ फाउंडर. ही when I met him, so COVID happened. I met him in COVID only. So COVID में he had one startup, but COVID की वजह से it couldn't work out. So he was literally building something from scratch. So I have seen कि scratch से चीज़ें करना क्या होता है. तो मैं जब भी टाइम मिलता था, used to work with him कि यार मैं कहीं पे हेल्प कर सकती हूँ क्या, बिकॉज मेरे लिए था कि मुझे सीखने मिलेगा. और मैंने उसके कॉल्स देखे थे, तो
आइडिया से लेकर मतलब लाइक यू आर बिल्डिंग अ आइडिया, देन आइडिया के बाद वो लोगों के लिए कैसे वर्क कर रहा है. इवन आई यूज टू टॉक टू माई कस्टमर्स अबाउट हिज आइडिया और आई यूज टू पिच देम क्योंकि मुझे करना था ये. Yeah. तो ही वॉज बिल्डिंग एक्सेल फॉर मोबाइल. तो लाइक दिस SMB पीपल who can literally maintain their record on phone. Like जैसे हम रजिस्टर पे पेन पेपर से वही लाइन खींच के डिटेल्स डाल रहे होते हैं, तो he wanted to break that thing and he wanted to create over a mobile. So I used to meet like बहुत सारे लोगों से जिनके छोटे बिजनेसेस होते थे और they used to maintain data and all और societies and all में. तो मैंने भी स्टार्ट किया कि यार मैं लोगों से पूछती हूँ कि कैसे उनको फील होता है अगर इफ ही इज़ बिल्डिंग समथिंग तो लोगों के लिए कैसे वर्क करेगा. तो दिस वॉज वेरी स्टार्ट ऑफ माई जर्नी टूवर्ड्स स्टार्टअप कि लोगों का माइंडसेट मैं समझ पाऊँ. अगर आप कुछ भी नया लेकर आते हो तो इट्स समथिंग कि आप हैबिट को चैलेंज करो, राइट. तो वहाँ पे आई स्टार्टेड वर्किंग एंड देन मैंने अपने एक कस्टमर से उसकी मीटिंग कराई और उसने बोला कि ठीक है आई विल पे यू अपफ्रंट. ही रियली लव्ड दैट आइडिया. बस उसने बोला कि कस्टमाइज एक ऑप्शन दे दो और उसने उसको 10,000 का चेक लिख के दे दिया कि ठीक है यू जस्ट मेक इट एंड देन हम फिर मिलते हैं. तो मुझे समझ आया कि दिस इज़ हाउ इट वर्क. और एक बार हम लोग पवई में मुंबई में मार्केट में निकल गए. तो जितने ये रेस्टोरेंट्स एंड ऑल होते थे सबसे बात करने की मतलब हाउ डू यू मैनेज योर डेटा. अगर आपके पास कोई सप्लाई लेके आ रहा है लाइक रेस्टोरेंट पे भी होता है ना कि सब्जियां कहाँ से आ रही है और बाकी चीज़ें कहाँ से आ रही है, तो हाउ डू यू मैनेज एंड एवरीथिंग. तो पूछा कि लाइक अगर ऐसा कुछ आता है तो विल यू नीड इट और समथिंग. तो वो रिसर्च की उस दिन. तो ये मेरा बहुत बेसिक था इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स दिस आइडिया एंड आइडिया फॉर्मेशन के साइड पे. बट इवेंचुअली ये काफ़ी सही स्टार्ट होने लगा और मैंने देखा वो मतलब मैंने उस स्टार्टअप को बनते देखा कि कैसे उस स्टार्टअप में 2 महीने बाद देयर वाज अ गाय जो अपनी 130 लोगों की टीम मैनेज कर रहा था उस ऐप पे. तो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड. एंड देन मुझे पता था कि यार स्टार्टअप बनने से लेके फंडिंग तक क्या जर्नी होती है. तो आई गेस वो मुझे बहुत हेल्प किया फॉर 3 डॉट्स की प्रिपरेशन के लिए बिकॉज आई एग्जैक्टली न्यू कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप क्या होता है. एंड यू नो लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट जॉब्स वेरी स्टेबल, काफ़ी सिक्योर होता है, टाइमिंग्स 9 to 5 लार्जली होते हैं. आई डोंट नो व्हाट योर टाइमिंग्स वर एट ICICI. काफ़ी स्टेबिलिटी होती है. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग, whereas startups are a lot more riskier. How do you think of that, and you know what advice would you give people that are in corporates and are scared to go into startups? क्या रिस्की नहीं है. आई मीन कोविड नहीं होने वाला था. कोविड हैज चेंज एवरीथिंग. हमें पता था कि बाहर जाना लग्जरी होगा एक टाइम के बाद. बट नाउ वी नो बिना मास्क लगाए घूमना हमें नहीं पता था ना कि यार ये लग्जरी है. वी वर वेटिंग लिटरली कि यार एक टाइम ऐसा है कि ये मास्क ना लगाना पड़े हमें. बट इट हैपेंड. तो मुझे लगता है ना कि वो रिस्क तो होना चाहिए. मज़ा कैसे आएगा अदरवाइज. आप तो सेफ बैठ गए. क्या किया आपने फिर? आप तो बस काट रहे हो लाइफ. जीना कब शुरू करोगे? सो दैट्स हाउ आई ऑल्सो परसीव माई लाइफ. हर एक चीज़ में आई गेस दैट इज़ हाउ लाइक स्कूल के बाद से आई ऑलवेज न्यू कि यार जर्नी थोड़ी अलग होगी बट थोड़ी थ्रिलिंग होनी चाहिए. जो भी करना है मज़ा आना चाहिए अपने मन से. तो यही आई वुड एडवाइस कि हाँ perceive this way, like मजा आएगा. And what is the biggest influence in your life that has taken you to take risks? मतलब ये कहाँ से आया है? Is this from family? Is this an experience that you've had? Where does this risk taking ability or mindset come from? ये आपके लिए कहाँ से आया? मुझे exactly याद नहीं है बट मैं बहुत स्टूडियस नहीं थी स्कूल में. मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं कि हाँ फेल भी नहीं हो रहे हैं, टॉप भी नहीं कर रहे हैं, बट बीच में चल रही है लाइफ. तो वो थी मैं. लेकिन मुझे ना चीज़ों को समझने और जानने में बहुत मज़ा आता था. तो मुझे लगता था कि यार रट के मैं कभी पढ़ नहीं सकती. और जैसे मैंने स्कूलिंग एंड ऑल की मुझे बस एक चीज़ पता थी कि मैं अलग हूँ. मतलब पता नहीं बहुत शुरू से मुझे ये था दिमाग में कि मैं डिफरेंट हूँ तो मेरी जर्नी भी डिफरेंट होगी. तो जो सब लोग कर रहे होंगे, जो सब लोग मुझे एडवाइस कर रहे होंगे, मैं नहीं करूँगी. मतलब शायद जैसे वो बाइक वाला जो डिसीजन था सबने मुझे रोका
कि स्कूटी ले लो, बाइक क्या ज़रूरत है, इतने में तो कार आ जाएगी, जितने में तो मम्मी बाइक ले रही हो और ये सब चीज़ें. बट मुझे पता था कि यार अलग लोग अलग चीज़ें करते हैं तो लेट्स गो फॉर इट. एंड वो होता गया फिर अपने आप. So that became like your guiding mantra. How do I differentiate myself? हाँ, अगर कभी लगता है कि यार चीज़ें सेम हो रही है तो चलो कुछ और अलग करता है. लेकिन इसके लिए काफी कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, बिकॉज आई थिंक वेयर डज दैट कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम, कि एक्सेप्ट करना कि मैं आई एम डिफरेंट एंड आई विल टेक रिस्क्स एंड व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग मे नॉट बी फॉर मी. उस बात के लिए कॉन्फिडेंस की भी जरूरत है ना. Also you also feel like जो early stages में होता है, like when you're young you have that risk taking ability. How do you ensure that as you continue to grow older you sort of maintain it, because that's what you want to do? तो मुझे हमेशा लगता था कि वो जो होता है ना, डिफरेंट टाइम आता है लाइफ में, लाइफ आपको अलग अलग तरीके से चैलेंज करती है. तो जब वो चैलेंजेस आते थे, आई ऑल्सो हैड बैड टाइम ऑल्सो, जहाँ पे फेल्ट एनजाइटी एंड एवरीथिंग. बट उसके बाद जो फील होता है ना, वो एनजाइटी वाले फेज से जब आप निकल जाते हो, वो डिप्रेशन वाला फेज, जब आपको लगता है कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, और आई मीन नथिंग इज़ मेकिंग सेंस एट ऑल. बट वो जो आपको पता होता है कि यार ये टाइम ना निकल जाएगा, क्योंकि निकल ही जाएगा, सारे टाइम पास हो जाता है. तो वो पता होता है कि यार उसके बाद हु डू यू वांट टू बी, दिस पर्सन जिसको हमेशा डर लगता है चीज़ें करने में, और दिस पर्सन यू विल बी लाइक फीलिंग कि हाँ यार ये तो कर लिया, मतलब थोड़ा डर लगा बट निकल गया ये फेज. तो दैट्स हाउ आई वाज लाइक कि अब मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ कि हु आई एम बिकमिंग डे बाय डे, और मतलब हु डू आई वांट टू बी. लाइक अगर मैं एक हफ्ते बाद खुद को देखती हूँ तो मैंने कुछ अचीव किया है नहीं किया है, मैंने कुछ चेंज किया है नहीं किया अपनी लाइफ में अपने लिए, बिकॉज एट द एंड आई एम आंसरेबल. And so is there like one moment that you can think of in your professional career where you sort of achieved something? Because we were talking about it in one of the previous episodes, right? Where you achieved something, and then what happens is that actually वो आपको बहुत confidence देता है, like for. So आपका journey में, like, is there some particular episode or particular thing that you've achieved that you said, oh wow, this has really opened up my eyes and my confidence is now is on another level altogether? तो जब मैं मुंबई से बेंगलोर आई तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से मैं मिली. मतलब इट टुक मी थोड़ा सा टाइम टू ओपन अप माई सेल्फ, लेकिन आई टेल यू लास्ट के 6 month जो थे मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन भरे थे. और अब जब मैं देखती हूँ ना कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले और मैं कहाँ हूँ, मतलब मेंटली, फाइनेंशियली और हर तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए आई ओपनिंग था कि मतलब यार मैंने कर दिया. जब मैंने घर पे कॉल करके अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ये हो गया, तो मम्मी मेरी ज़्यादा बोल नहीं पाती है, मतलब बहुत ऐसी शांत सी लेडी है, बट शी वॉज लाइक कि मुझे ना आज अच्छी नींद आएगी बस इतना बोला उन्होंने. तो मुझे समझ आया कि अभी तो और कुछ है करने को लाइफ में, बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ से स्टार्ट किया था सोचा नहीं था कि आई कैन कम दिस फार ऑल्सो, बट कर ली वो चीज़ें. बिकॉज जो मैंने पाथ लिया था एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा थ्रिलिंग था, तो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट ऑल्सो, बट या दैट वॉज द आई ओपनिंग. Got it. For me. Maybe do one more question and then move to the rapid fire. Yeah. I'm very curious to, I think, hear about how you reflect on your UPSC का experience, क्योंकि 3 years आपने पढ़ाई करी and then you sort of decided to join the private sector, and now you're on this career trajectory that takes you towards sort of startups and entrepreneurship. And you also, I think, would have picked philosophy as your subject then. So how do you look back at those 3 years? मतलब आप अगर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आपसे कमिटमेंट मांगता है. मतलब वहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा होता है कुछ, बट लेकिन मैंने बताया ना, जैसे मैं बहुत स्टूडियस नहीं थी स्कूल में, बट मैंने स्टार्ट कर दिया 11 घंटे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ना, और आई यूज्ड टू लव इट. और द वे यू एक्सप्लोर थिंग्स ना, कि आपको पता चलता है कि चीज़ें कैसे आई है. हिस्ट्री पढ़ते हो, आप पॉलिटी पढ़ते हो, एंड देन आपको पता चलता है कि आपके आसपास चीज़ें क्या हो रही है, और आपका माइंडसेट डेवलप होता है. मतलब आप एक पर्सपेक्टिव बनाते हो, आप सिर्फ सीख नहीं रहे होते हो. तो
तो वो पर्सपेक्टिव और वो जो कमिटमेंट होता है ना, आई फील कि हाँ वो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो हेल्पफुल था, बिकॉज आफ्टर दिस, क्योंकि मुझे तब पता चला कि यार ये भी मैं कर सकती हूँ. जब आप करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ 11 घंटे बैठ के पढ़ना और किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट शो करना, और फिर इस कमिटमेंट के बाद मतलब उस चीज़ को डिटेल आप अपने पर्सपेक्टिव से देखते हो. जैसे कोई इंसिडेंट कहीं पर हो गया तो आप उसको सिर्फ एक इंसिडेंट की तरह नहीं देख रहे हो, तो आप एक्चुअली देखते हो कि हाँ उसके पीछे क्या रीज़न हो गया. आपका अपना पर्सपेक्टिव होता है, और लाइफ में जब आप पर्सपेक्टिव डेवलप करते जाते हो तो वो आपको हर एक स्टेज पे हेल्प करता है. आप चाहे कहीं पे भी काम कर रहे हो, बट पर्सपेक्टिव होना इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, और वो आता है बहुत सारे नॉलेज के साथ. और उसके लिए अगर आप अपने आप को ओपन अप कर सकते हो कि वो नॉलेज के लिए आपके अंदर वो हंगर है कि यार मुझे तो जानना है, मुझे तो सीखना है. और मुझे लगता है मेरे अंदर वो हंगर आफ्टर दैट 3 years का प्रिपरेशन के बाद ही आया, कि कुछ भी नया देख के आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस कि यार ये मुझे पता करना है, ये मुझे जानना है, ये क्या है एंड एवरीथिंग. तो इट रियली हेल्प मी. Did you consider the UPSC? Yeah. I mean, we've talked about it at some point, but I don't think we had the. Were you serious though, like at any point? No, I wasn't actually. But we did want to I mean, there was public service. Very much in the. Yeah. No, that's crazy. And it's also like, I think from the people that we've spoken to, like, I think your ability to reflect on your journey is really inspiring. Where I think you have, like you said, like, I think you have such perspective on every experience that you've gone through. And I think you're able to draw a thread between all of those experiences, even though they are like, to an outsider, like super different. Like there's such a clear theme of like learning and curiosity, and sometimes even I think adventure. Like your career almost sounds like you sound like someone who's an adventure sport enthusiast, right? Like it's like risk to lena hi hai. Like how can you not take a risk? Nahi to maza kaise aayega? Which is I think just super fun to hear about. Should we do the rapid fire? Yeah. Okay, we should do the rapid fire. Well, now you're familiar with how we do rapid fires in every of these conversations, and we'll just ask you some fun questions and expect honest, quick thoughts, reflections, if any. Sure. So we'll go one on one. We'll go one by one. Okay. Aditya, do you want to go first? I can go first. A great manager, a great salary, a great startup. You can only pick 2 out of these 3. Which ones would you pick? Great manager and great startup. Really? Give us one line on why. काम सीख लो, पैसे तो मिल जाएंगे. Okay. Okay. So here's the second one. You have the option of taking anyone, anyone, Okay. on a bike adventure journey behind you. Who would you pick and why? So are you giving me option? No, There are could no be options. It could be anyone. If you want to say, I don't want to put answers in your head, so go for it. Usually I am the kind of person जिसको किसी को भी अच्छा नहीं लगता अपने बाइक के पीछे बैठाना. I enjoy riding alone, but बाइक जर्नी तो ठीक है, बट मैं अगर कभी बाइक राइड पे जाना चाहूँगी तो दिस पर्सन, दिस सदगुरु जो अभी सेव सॉइल के लिए बाइक राइड कर रहे हैं, मुझे उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी कूल लगती है. One piece of advice that you would give yourself when you are 20 years old. Stop worrying about कि नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगे, कर ही लेता है, और लाइफ ऐसे जाती है, ऐसे होगी बट ऐसे हो जाएगी, तो स्टॉप वरिंग. Okay. And the last one, this is a complicated question. It should not be complicated, but if you want to take more than a line or two, that's fair. What do you think we need to do to truly ensure that we are contributing to building a diverse workplace, an equal workplace for women? I was in this business kind of role always. तो जब भी मेरा काम हो जाता था लोगों को लगता था कि just because I'm a girl इसीलिए मेरे लिए easy है करना, बट वो ऐसे नहीं देखते थे कि यार मैंने भी मेहनत की है उसके लिए. हो सकता है कि
मतलब आई डोंट नो सामने वाले का क्या पर्सपेक्टिव है, बट मैं मेहनत करती हूँ उसके लिए, तभी चीज़ें हो रही है मेरे साथ. अदरवाइज जस्ट बिकॉज बीइंग अ गर्ल चीज़ें हो जाती है, वो पर्सपेक्टिव अगर हम हटा सकते हैं, क्योंकि वो हर बार आता है. जितनी भी जगह मैंने काम किया है, मैंने ये फील किया है कि मेरे जो कॉलीग्स हैं दे विल फील लाइक दिस कि तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम लड़की हो. तो ऐसा नहीं होता है. तो आई वुड से कि वो इक्वल अप्रिसिएशन इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट. बिकॉज मैंने ये चीज़ बैंक से फील करना स्टार्ट हुआ है मेरे साथ कि हाँ, आपको हर कोई ये फील कराएगा, तुम तो कर लोगी, तुम्हें तो लोग सुन लेते हैं, तुम्हारी बात सुन लेते हैं. इट्स नॉट बिकॉज कि यार मैं मुझे बोलना आता है, शायद मैंने सीखा है, कुछ मेहनत की होगी ना उसके लिए, तभी शायद लोग सुन रहे हैं. तो वो वाला अगर हम बना सकते हैं ना डिफरेंस कि नहीं, हर कोई मेहनत कर रहा है. मतलब डू नॉट सी मी एज ए गर्ल कि हाँ ठीक है तुमने Value you for your लड़कियों के इतना कर contribution. लिया. नहीं, तुमने मेहनत करी है, तुम्हें कैपेबिलिटी है करने की, तो तुमने कर ली. तो कुछ सही किए. See this way. Cool. Oh, that's great. Do you have any questions for us, Pooja? Any comments, any questions, any thoughts? Actually, one thing I felt during this interview, कि while answering so many things, I also felt बहुत deep down था, but I wasn't feeling this way बहुत time से. So you guys really helped me feel that way today. So it felt so nice, honestly. Thank you so much.